پروگرام لیٹس ٹاک اور میں انجم رضوی خواتین آزادی پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان سوالات پہ مبنی ہوتا ہے جو کچھ میرے ذہن میں گردش کر رہے ہوتے ہیں، کچھ آپ مجھے ای میلز کے ذریعے سے بھیجتے ہیں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام کے ختم ہوتے ہوتے اگر ہمارے تمام سوالوں کے جواب نہ بھی ملیں تو کم از کم ہمارے مائنڈ سیٹس یا ہمارے سوچ کے زاویے جو ہیں وہ درست ہم کی طرف گامزن ہو جائیں۔ بہت ساری سٹوریز ہیں میڈیا کے مختلف چینلز پہ، اخبارات بھرے پڑے ہیں۔ پاکستان ایک ایسی جگہ ہو گئی ہے جہاں ہر روز ایک نئی سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے اور سنسنی خیزی کی انتہا تک جاتی ہے، اور ابھی اس پچھلی سٹوری کو فالو ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرے دن پتہ چلتا ہے کہ ایک نیا شاخسانہ ہے، اور یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے جس سے لوگ بھی کنفیوز ہوتے ہیں، عوام بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ جو بنیادی جو چیزیں ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، انسان کی نوکری ہے، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس حد تک متاثر ہوتا ہے کہ اپنے کل کی روزی کیسے کمائے کی بجائے وہ ان خیالوں میں ہوتا ہے کہ بھئی بجلی کا کیا ہوگا، گیس کا اسمبلی ٹوٹے گی نہیں ٹوٹے گی، سپریم کورٹ کیا فیصلہ کر رہا ہے، جنرل مشرف واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ سارے سوالات تھے۔ پچھلے دنوں آل پاکستان مسلم لیگ جس کے روح رواں ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف سابق صدر پاکستان، انہوں نے ایک ٹیلی فونک خطاب بھی کیا، ویڈیو لنک کراچی میں کیا۔ یہ وہی جلسہ گاہ تھی جہاں پہ 25 دسمبر کو تحریک انصاف کے عمران خان اور ان کے لیڈرز نے جلسہ کیا تھا۔ جلسہ گاہ کی کیپیسٹی جو ہے وہ مجموعی طور پہ جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ 1 لاکھ ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ مجمع جو تھا 1 یا 2 لاکھ سے تجاوز کر گیا تھا۔ جنرل پرویز مشرف کی ریلی میں کتنے لوگ تھے اور اس کا کیا امپیکٹ ہوا، ان کی تقریر کا کیا ہوا، لوگ آپس میں بہت سارے سوالیہ نشان بھی لیے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات بھی کر رہے ہیں اور اس کے امپیکٹ کی بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا ریئیکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں 27 اور 30 جنوری کے درمیان واپس آؤں گا، تو اس کے 10 منٹ بعد ہی وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا کہ ان کو آتے ہی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا، اور بہت سارے سوالات ہیں۔ وہ آئیں گے، کیا کریں گے، ان کا پلان کیا ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آل پاکستان مسلم لیگ سندھ کے سیکرٹری جنرل بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں نامور ماہر قانون ہیں، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، دی لا میگزین کے چیف ایڈیٹر ہیں اور تجزیہ کار ہیں جناب محترم جاوید صدیقی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا۔ حارث نواز صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک جلسہ ہوا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک 25 سے 30 ہزار کی ایک فگر آئی اس دن، شام بھی بڑی سرد تھی اور غالباً آپ لوگوں نے اپنا پروگرام کٹ ڈاؤن کر کے جنرل صاحب کو پہلے تقریر کے لیے کہا۔ تقریر تو سب اپنی جگہ ہے، کچھ حلقوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کو ایم کیو ایم کی سپورٹ بھی حاصل تھی، اور کچھ جو وہاں پہ لوگ تھے پبلک میں وہ ایم کیو ایم کے بھی تھے، کیونکہ جنرل صاحب سے تو بہت اچھے تعلقات رہے تھے۔ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو میں بڑی کلیئر بات کروں کہ ہمیں کسی کی سپورٹ نہیں تھی اور نہ ہم کسی کی سپورٹ پر ریلائی کرتے ہیں، اینڈ دس آئی ایم سیئنگ کیٹیگوریکلی اینڈ آئی ہیو لاٹ آف کنوکشن ان اٹ۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہ ہم نے کسی سپورٹ مانگی کسی پارٹی سے، اور نہ ہمیں کسی پارٹی نے دی، اور نہ ہم کبھی کسی سے مانگیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات تو بڑی کلیئر ہے۔ اور میں آپ کی جلسے کی اسٹرینتھ یہ بتاؤں کہ آر لیڈر از ناٹ پریزنٹ، ڈسپائٹ دیٹ یہ جو 25,000 کہہ رہے ہیں، یہ صرف وہ پارٹیز اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو ان کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، کم دکھانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں پورا میڈیا وہاں پر تھا، ایک پوری انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پر تھیں، سول اینڈ ملٹری ایجنسیز۔ میرے خیال میں کسی لحاظ سے بھی وہاں پہ 70 سے 80 ہزار لوگ سے اراؤنڈ تھے۔ 70 سے 80 ہزار 45,000 چیئرز ہماری وہاں پر لگی ہوئی تھیں، دے ور آل فلڈ، اور بے انتہا لوگ باہر کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ، اور یہ نہیں ہے کہ صرف کراچی سے لوگ تھے، انٹیریئر سندھ سے ہماری بہت وہی جو ان کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ وہاں پر آئے ہیں۔ اور کیونکہ سندھ میں جنرل مشرف نے بہت کام کیا، سندھ میں اور کراچی میں، آپ کے سامنے لیاری پاس ہے، یہ انڈر پاسز بنے ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کراچی سٹی گورنمنٹ میں نعمت اللہ صاحب کے ٹائم میں بہت کام ہوا۔ کریڈٹ تو انہوں نے جو سابق میئر تھے مصطفیٰ کمال ان کو دیا، 5 سال کا ایک کو دیا، اس سے 5 سال وہ ان کو 5 سال دیا۔ اور اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہیں تھے، اور کتنی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے خیال میں جو ان کا ولولہ تھا، جوش تھا، وہ آپ کے سامنے، ڈسپائٹ کہ رات کو سردی ہو گئی تھی تھوڑی سی، کیونکہ لوگ انکمفرٹیبل تو ہم نے اسپیچ کو ذرا سا ایڈوانس کر دیا تھا۔ ادروائز میرے خیال میں یہ پہلا جلسہ کراچی میں اس جگہ پر مینار قائد کے پاس، اور آپ کے سامنے بڑی گراؤنڈ ہے اور آلموسٹ گراؤنڈ فل ہوئی تھی، اس سے میرے خیال میں سب کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنی اسٹرینتھ تھی اور ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے سندھ کے اندر۔ تو یہ تو بات بڑی جاوید صدیقی صاحب کو اس گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں۔ جناب صاحب، جنرل مشرف نے کئی باتیں کیں، اعلانات کیے، لیکن اب میں آ رہا ہوں ان کا جو واپسی کا شیڈول انہوں نے دیا ہے کہ بٹوین 27
जनवरी एंड 30 जनवरी वो आएंगे और गालिबन कराची में ही लैंड करेंगे। ये ज़रा मैं कानूनी तौर पर समझना चाह रहा हूँ कि जैसे कि वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने ये कहा कि उन्हें आते ही हम एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लेंगे। आज भी सिंध के वज़ीर दाखिला मंजूर वसान का भी इसी हवाले से एक बयान आया है, और मुख्तलिफ वो क्वार्टर्स जो हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने भी यही कहा कि इनके ख़िलाफ़ केसेस इतने खुले हुए हैं एंड मतलब इनके ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट होंगे, क्या होगा, कोई कानूनी इसका पहलू क्या है? क्या वाकई ये होगा कि जब वो आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? कानूनी पहलू के हिसाब से तो एक तो वो कानून है जो किताबों में है, ठीक, और एक वो कानून है जिस पे अमल दरामद होता है। तो किताबी हिसाब से तो जो FIRs कटी हैं और जो सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या सो मेनी थिंग्स, इन सब के हवाले से तो पर्सन शुड बी टेकन टू टास्क। मगर ये होता है या नहीं होता ये तो इक़्तिदार के लोग ही जाने। हम तो ये जानते हैं कि हर शख्स को सियासत का राइट है, और वो अगर आना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों को कानूनी और गैर कानूनी दोनों चीज़ों को सामने रखते हुए वो अपना फैसला करें। इस बुनियाद के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि आप ना आएँ या आते ही गिरफ्तार हो जाएं। सूरत हर हाल से दोनों हो सकती हैं, तो ही मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। जहाँ तक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का ताल्लुक है, एवरीबडी हैज़ अ राइट, ही शुड कम। इसमें मेरी एक सिंपल सी बात है, बड़ा क्लियर उन्होंने अपनी स्पीच में, अपने एड्रेसेस में, टेलीफोन टॉक शोज़ में, एक्चुअल टॉक शोज़ में उन्होंने बड़ा क्लियर बताया है दैट ही इज़ रेडी टू फेस ऑल चैलेंजेस कोर्ट के लिए। उन्होंने ये कहा है बड़ा क्लियर कि लीगल केसेस लीगल तरीके से करेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो पॉलिटिकल तरीके से की जाएगी। एट नेवर स्टेज ही सेड कि जी मैं यहाँ पर आके पेश नहीं होऊंगा, या वो आ ही इसीलिए रहे चैलेंज को फेस करने के लिए। और सेकंड बात ये कि वज़ीर दाखिला साहब को मेरे ख्याल में इतना पता ही नहीं, ना रहमान मलिक साहब को, पहले तो इनको भी मेरे ख्याल में बेनज़ीर केस में इन्वॉल्व होना चाहिए। और भी क्योंकि जब हटेंगे आई थिंक दे विल ऑल ऑफ टू फेस द केसेस कि जिस तरह बेनज़ीर को शहीद को उस जख्मी छोड़ के भाग गए थे बाबर रहमान साहब, और ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को और पाकिस्तान में हर एक को पता है, लिविंग अ पार्ट साइड, कि 21 तारीख को उनके इस केस की बेनज़ीर केस की हेयरिंग है। लेट्स सी कि उसका क्या रिजल्ट होता है। वो जो जाए वक़्वा धुलवाई थी वो तो डायरेक्ट जनरल मुशर्रफ पे बात आ रही है, उंगलियां तो उनकी तरफ जा रही हैं। अगर थी उससे पहले अगर पूरा प्रूफ ले लिया गया है और कर लिया गया है और आपने सीन क्रिएट नहीं करना, दैट इज अ डिफरेंट इशू। बात ये कि 21 तारीख को 21 जनवरी को इस केस की हेयरिंग है। अच्छा। इस केस की हेयरिंग के अंदर whatever the court decide, maybe he is granted bail, he is not granted bail, whatever legal way is we are going to face। बट अगर इलीगल तरीके से यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट ने कुछ किया तो उसको हम फिर उसी तरीके से डील करेंगे जो पॉलिटिकल तरीके से डील किया जाता है। जज साहब आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था कि जो बातें हैं बेनज़ीर साहबा के शहादत की वो अपनी जगह है, उसमें तो कोई कलाम नहीं कि वो कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके अगेंस्ट जाती हैं कि बेनज़ीर साहबा ने जो लेटर मार्क सीगल को लिखा था उसमें जो नाम दिए थे उसमें भी दे दिया। तो फिर एक दफ़ा एक हेड ऑफ द स्टेट जहाँ पे है, जहाँ वो खुद कुछ अरसे पहले कहे कि अगर आती हैं तो अपने रिस्क पे आएंगी, तो ये सब चीज़ें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में उनकी भी नाम आता है। मगर जैसे हारिस साहब ने कहा कि भाई वो आप लें, एक्शन लें। भाई साहब, जनरल मुशर्रफ या आपकी पार्टी पाकिस्तान वाइट पार्टी है और आपने ये कहा कि हम पूरे पाकिस्तान से अगर इलेक्शन में गए तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में ही जाएंगे और अपने सियासी मकासद अज़ाइम को सबको लेके। वाई चित्राल? वाई डिड ही नहीं, देखें चित्राल ना उनका कभी ताल्लुक चित्राल से रहा, ना वो कभी रहे वहाँ पे, उन्हें तो शायद रास्ते भी पता नहीं होंगे चित्राल के। नहीं, वो मैं आपको बताऊं, बेसिकली बात ये है, ही इज़ गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम ईस्ट प्रोविंस, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ये क्योंकि चित्राल के प्रिंस मोहिउद्दीन उनके बहुत ही पुराने साथी हैं और उन्होंने ये कहा कि उनकी एक पोस्ट सीट है कि जी ये मैं आपको वैसे सीट दूंगा, तो इस बात पर उन्होंने जिक्र किया। बट अदरवाइज ही इज़ गोइंग टू कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम ऑल द प्रोविंसेस। तो ये तो डिसाइडेड है, ये हमने भी कॉन्स्टिट्यूंसी ने डिसाइड की कहाँ से होनी है। तो सिंस इज़ अ लीडर ही इज़ गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम ऑल चैनल। ये एक सिर्फ उन्होंने ये बताई कि क्योंकि उनके दोस्त ने उनको एक पोस्ट सीट दी है, तो ये उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से ये एक जो कंफर्म है फॉर श्योरिटी है, बाकी ही इज गोइंग टू कंटेस्ट फ्रॉम। अच्छा, मतलब सिर्फ इसलिए कि अनअपोज सीट है, मतलब कैप्चर्ड सीट ऐसा है ना, जैसे वो रियासत के लोग प्रिंस गिफ्ट करते हैं, तो मुमकिन है ये तो इसमें जमहूरियत कहाँ गई? जमहूरियत नहीं, इसमें जमहूरियत ये है कि 4 प्रोविंस से लड़ेंगे ना इलेक्शन, तो बाकी लड़ेंगे 4 प्रोविंस। जी, उस एक सीट की चित्राल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो तो एक कैप्चर्ड सीट हो गई ना, वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अगर वो आपको कोई सीट मिल रही है और आपको वो दे रहे हैं और आपको ऑफर कर रहे हैं, हो सकता है वहां से कोई और भी खड़ा हो जाए,
इट इज़ नॉट फॉर श्योर अगर जब मुशर्रफ खड़े होते हैं, मे बी कोई खड़ा हो जाए, तो he said कि I will not be elected, he said I will contest this election from there. जी जी। तो contest में और selection में there is a big difference. हाँ, लेकिन जैसे अभी आपने कहा ना कि चूंकि जो उन्होंने उनको कहा है, लेकिन जनरली गिफ्ट की सीट है। उनकी होती है, लेकिन हो सकता है वहाँ हमने खड़ा हो। पिछले अरबाब रहीम जब चीफ मिनिस्टर थे उनको भी देखा था ना, जब मिट्टी से प्राइम शौकत मिनिस्टर अजीज साहब इलेक्शन को लड़ा। जब लड़ाया था तो कैसे लड़ाया था, बहरहाल शौकत अजीज को थर से लड़ाया था, और थर से हमने लड़ा यही के सवाल बिल्कुल उनसे ये। किया था कि आप कराची आके, और थर का रास्ता आपको पता है कि जहाँ से आप इलेक्ट हुए हैं एज एन MNA, तो नेचुरली नहीं पता था, तो यही सवाल तो उनसे नहीं, चित्राल में देखें, चित्राल में जितना उन्होंने काम किया ना, मैं आपको बताऊं, ये गिलगित और बल्दिस्तान के और चित्राल के लोग जितना जल मुशर्रफ से मोहब्बत करते हैं, जितना उनको लाइक करते हैं, इस जलसे में भी बेइंतहा लोग आए हुए थे सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने एक लवारी बाईपास बनाया, ठीक है, वो उन्होंने कंप्लीट किया, एक शंदूर के ऊपर से उन्होंने रोड उनको लिंकेज दिए। पहले वो बेचारे अफगानिस्तान से जाते होते थे, तो वहाँ के लोग इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आप गिलगित में किसी से पूछिए आप, तो आपको पता चलेगा कि कितने ज़्यादा लोग गिलगित बल्दिस्तान के और चित्राल के लोग इनसे करते हैं, और इसलिए उन लोगों ने ज़बरदस्ती उनको मजबूर करके, फोर्स करके उनको कहा जी कि यहाँ से तो आपने लड़ना है, बाकी प्रोविंसेस से आप खुद डिसाइड करें जहाँ से भी होके, हमने आपको इलेक्शन ही लड़ाना है और हमने आपको यहाँ से इलेक्शन जिताना है, एंड दैट इज़ व्हाई ही हैड टू एक्सेप्ट। एक बड़ी जय खुशाइन बात है जी जी। मुशर्रफ साहब के, क्योंकि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान खुद एक रूए ज़मीन पे एक अजीबुल खलकत किस्म की चीज़ है, तो उसमें एक आर्मी डिक्टेटर और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर आके अपने को Absolutely. अलग कराने की कोशिश कर रहा है, Take it ये as एक ज़रा कोई positive बात है, Take it as positive. क्योंकि ही इज़ अ पर्सन जिसने कारगिल के बाद सारा लपेट दिया, और उसके बाद एक किसी जगह पढ़ रहा था कि किसी ने कहा कि डेमोक्रेसी शायद अफगानिस्तान से हम सीखें, तो उन्होंने ये कहा था कि इफ़ वी हैव टू लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम अफगानिस्तान देन गॉड हेल्प अस। दूसरी जगह ये कहा कि डू यू थिंक इट्स अ बनाना रिपब्लिक। तो ये बातें करते हुए भी वो आदमी, वो शख्सियत एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आके अपने को पेश कर रहा है, तो ये एक अजूबे रोज़गार अपनी जगह, मगर एक बड़ी अच्छी बना डालेंगे, क्योंकि किसी आर्मी डिक्टेटर की, चाहे वो असलम बेग हो, उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कुछ लड़ें, मगर जब रिटायर होने के बाद उन्होंने कहीं मजमा लगाया तो 50 आदमी से ज़्यादा नहीं लगे, मगर इस मजमे में काफ़ी लोग आए। इसी तरह हर जर्नैल को ये खुशफहमी होती है कि वो एक बड़ा ज़हीन आदमी है, क्योंकि उसने इतनी बड़ी कमांड की है। ये भूल जाता है कि एक शख्स की जो तरबियत है उससे जैसे एक लॉयर को अगर आप ऑल ऑफ ए सडन, अब लॉर्ड क्लाइव तो सब होते नहीं, एक कंपनी के मुलाजिम हो के वो सिराजुद्दौला को भी मार लें, मगर लॉयर को अगर आप जनरल बना देंगे, लाख वो समझे कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मैं तो ये कमांड करूँगा, ही विल बी फ्लॉप। तो जर्नल नॉर्मली वर्ल्ड ओवर in the history world over, journals have never delivered as a politician. This will be another अजूबे रोजगार चीज जो पाकिस्तान में होगी कि एक जर्नल डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, फेयर इलेक्शन से अगर कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है तो दैट विल बी। जन साहब ने तो इस असेंबली को अनपढ़ असेंबली भी तो कहा था ना अपने ज़माने में, सिर्फ इसलिए कि उनकी आवाज़ नहीं देखें, मैं सुनाई एक जाए। और बात बताऊं, देखें जनरल मुशर्रफ जो हैं APML के कायद बाहर बैठे हुए हैं, महीने में 2 लेक्चर देते हैं, 3 से 4 लाख डॉलर महीने के अर्न कर लेते हैं। ही इज़ हैविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, माशाल्लाह उस एज में है कि ही कैन रिलैक्स एंड हैव ऑल प्रिविलेजेस। व्हाई ही वांट्स टू कम, आप देखें ना, एक इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए कि वो क्यों आना चाहते हैं। इस वक्त आपके सामने उनके 9 साल का दौर ले लें, 2-3 चीज़ों को छोड़ने के अलावा, और वही चीजें तो थी देखें, वही चीजें जिन्होंने हमें स्क्वायर वन पे पहुंचा दिया। आरिफ साहब, बलोचिस्तान इशू इज अ डिफरेंट, बिल्कुल गलत। बलोचिस्तान इशू में देखें आप, और लाल मस्जिद जो हम हमेशा बात करते हैं, बारी बारी आती है आप बलूचिस्तान आते- इशू, ओके, बलूचिस्तान इशू को अकबर लेते अकबर हैं। बुक्टी। देखें मैं आपको बताता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, फौज का बड़ा सिंपल सिस्टम है, जब फौज को सिविल एड में लाया जाता है, इन एड ऑफ सिविल पावर लाया जाता है, तो चीफ मिनिस्टर जो होता है वो कोर कमांडर को एक रिक्वेजिशन भेजता है लिख के कि जी मुझे फ़ौज की ज़रूरत है अपना जगह के लिए। वो फ़ौज वहाँ पर आती है और वो अब